All right, friends. So let us complete the PT 365. Environment से हम start करें. We are starting from environment. Okay, and these are basically notes which are released by Vision IS. Okay, so you can download these notes from Vision IS's website or app, and these notes are obviously very well sought after. And first, we will complete the April 2024 to October 2024. What these are basically current affairs updates, and these are also static updates from the past 1 year. Okay. So let us talk about first the biodiversity pillar. We will talk about the biodiversity pillar. So in this, we will start with the wildlife and conservation pillar. The first topic is the red list of threatened species. Okay. So, who updates the red list of threatened species? It is IUCN. Okay. So now what is IUCN? Is it a United Nations organization? Is it a NGO? What is it? Any idea? IUCN, when I say IUCN, it's an organization, yes, but what it is? Okay. So basically, it's an NGO. Okay. And it is known for nature conservation. Okay. And IUCN, the full form of IUCN is International Union for Conservation of Nature. Okay. And this provides information about animal, plant, and fungal species which are at risk of extinction. And it releases the red list of threatened species. Okay. So basically, IUCN, it works with government and civil society organization, and it has a network in more than 160 countries. Okay. So this IUCN red list, what we are talking about, it has certain categories. Now let us talk about these categories. One is your not evaluated. The other is your data deficient. Deficient. What does it mean? See, as you know that a lot of organisms and a lot of flora and a lot of fauna, they are still to be discovered and they are yet to be discovered, or if they are discovered, there is not much information that we know about. So we can put them in the either in the not evaluated criteria or the data deficient criteria. Okay. Then you have least concern. Now, what is least concern? It means that the population of that particular flora fauna, it is stable and it will not be facing extinction in the near future. Then comes your near threatened. It means that there has been some problems with the population. Maybe there has been starting of hunting, there has been habitat loss. Something like this has started to happen, but still the population is stable enough. Only certain concerns have risen in the past few months or past few years. So they have been basically upgraded from least concern, where their population was stable, to near threatened. Now when the population of the flora or fauna, it faces more pressure, ज्यादा और pressure इसमें आना शुरू हो जाएगा. So उस केस में हम क्या देखेंगे, that it is again getting upgraded from near threatened to vulnerable. It means that now there is a risk of extinction that is looming. And then once vulnerable is upgraded, then we go to endangered. It means now there is a very high risk of extinction in the wild. Okay. After that, we come to the critically endangered part. Now, this means that the population is extremely low. So, is there a criteria? Is there a fixed number? Is there a fixed number with critically endangered? No, the number varies from species to species. What is the reason for that?
there is a difference in gestation period, my dear friend. So what happens? An elephant, a rhino, and other large mammals, they have a very large gestation period. Pregnancy का जो period होता है उनका बहुत ज्यादा stretched होता है. So population replenishment is very slow in the large mammals. Now, because of that, the critically endangered criteria for large mammals will be higher or lower. मतलब critically endangered, अगर मुझे suppose there is an animal A which is a small mammal or small animal, and then there is an animal B which is a large mammal. So इसमें से population किसका ज्यादा होगा, फिर भी हम उसको critically endangered मान लेंगे. Suppose ए वाला जो है स्मॉल मैमल है, सो वी विल से अगर मान लो 300 भी है, देन वी विल कॉल इट अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. वाइल बी जो एक बड़ा मैमल है, द बी जो स्पीशीज है विच इज अ बिगर मैमल विथ अ लार्जर जेस्टेशन पीरियड, लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड, उसको हम 5,000 पे भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानेंगे. उसके पीछे का रीजन क्या है? द रेट ऑफ पॉपुलेशन रेप्लेनिशमेंट. In larger mammal, the rate of population replenishment is very slow, and that is why वहां पर क्या होगा, जब तक 4-5 मर जाएंगे उनके जो एल्डरली, जिनको हम कहते हैं एल्डरली मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, व्हेन दे विल डाई, तो एक बच्चा पैदा होगा. समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन. Whereas A, which is a small mammal with a smaller gestation period, what is going to happen in that case? वो जो है क्विकली replenish हो सकता है मिनिमल एफर्ट के साथ, जो है इट कैन रिप्लेस इटसेल्फ. सो उसके लिए जो है हम थोड़ा सा क्राइटेरिया लोअर नंबर पे रखते हैं फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इज दिस क्लियर? उसके बाद क्या आ जाता है? एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड. So extinction in the wild का मतलब क्या होता है? That this animal is no longer, you will be seeing this in the wild. It can only be seen in zoos and other areas. Then comes extinction. Now that an individual is dead. Extinction example, can I say dodo? Can I say dodo? Yes. Any other example that you can remember? Tasmanian wolf. Tasmanian wolf. Yes. ओके, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं, ओके, ये सारे एनिमल्स दे हैव गॉटन एक्सटिंक्ट. ये मिलते नहीं है आपको. ओके, अब इसके बारे में हम देखते हैं करंट अफेयर्स. लेट अस टॉक अबाउट द की अपडेट्स. सो देयर इज अ ला गोमेरा जाइंट लिजर्ड व्हिच हैज बीन अपडेटेड. Previously it was critically endangered, now it is updated as endangered. It is found in the Canary Island. So is it a good thing or a bad thing? It's a good thing that this La Gomera lizard has been updated to endangered. Then Copiapoa cacti, 82% of the species is at the risk of extinction. और ये कहाँ मिलता है? Atacama coastal desert in Chile. So Atacama desert जो है साउथ अमेरिका में, चिले में, you will find this. So South American geography is very important. Okay. Then Gran Canaria giant lizard, it is critically endangered. Previously, it was least concern. So is it not concerning that an animal which was least concern a few years back is now all of a sudden it is critically endangered? Another animal from Canary Island. Canary Islands जो है किसके अंदर आता है, किस कंट्री के अंदर आता है? ये जो है आपका स्पेन के अंदर आता है. एंड कैनरी आइलैंड इज लोकेटेड वेयर? Canary Islands are located where? It is located off the coast of Africa in the Atlantic Ocean. अफ्रीकन कोस्ट के जो है मोरक्को के वेस्ट में ये पड़ता है. ओके. ग्रैंड कैनेरिया स्किंक, इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज. पहले लीस्ट कंसर्न था और ये भी कैनरी आइलैंड में है. इबीजा वॉल लिजर्ड, endangered. Previously it was near threatened. So ये कहाँ था? Island of Ibiza and Formentera, स्पेन में. Then Bornean elephant. So Borneo आपको पता है कहाँ पर होता है? Where are the Borneo island located? In which country?
They are located in Indonesia. ओके, सो बेसिकली इंडोनेशिया जो है, वहां पर आपको ये बोर्नियो आइलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पर बोर्नियन एलिफेंट्स जो है, दे हैव बीन मेड इनटू, यस। और ये बोर्नियो जो है, बोर्नियो ये आपको 3 कंट्री को होस्ट करता है। बोर्नियो एक आइलैंड है बड़ा सा, आपका इंडोनेशिया के नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे। और 3 कंट्री जो है उसको ये होस्ट करता है। कौन कौन से आइलैंड को होस्ट करता है, कौन कौन से कंट्रीज को होस्ट करता है? इंडोनेशिया को होस्ट करता है, मलेशिया को होस्ट करता है, और ब्रुनेई उसको होस्ट करता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर लोकेटेड है? इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया, इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और पॉलिटिकली 3 कंट्री में डिवाइडेड है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। ओके, और यहाँ पर जो बोर्नियन एलिफेंट्स है, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड। और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर आपको? ओरंगुटैन्स मिलते हैं, बोर्नियन ओरंगुटैन्स। ऑल्सो यू फाइंड वन फ्लावर इन बोर्नियो। व्हाट इज दैट नेम ऑफ दैट फ्लावर? दैट फ्लावर्स नेम इज Rafflesia. Okay, so you find the Rafflesia flower here. अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल फिनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस, SFTLC. So what is this? So this Sustainable Finance for Tiger Landscape Conference, SFTLC, it was hosted by the Bhutan government and supported by the Tiger Conservation Coalition. Okay, so ये चीज आप याद रखिएगा। SFTLC seeks to increase support for what? Tiger protection and its landscape using new financial strategies and global partnership as stated in the Paro statement. So Thimphu is the capital and Paro is another largest city. तो ये जो है पारो में आपका एयरपोर्ट है। भूटान जो है ना, भूटान में अगर आपको जाना है तो पारो में यू विल फाइंड द एयरपोर्ट, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ भूटान। तो वहीं पारो स्टेटमेंट वहीं से आया। और ये $1 बिलियन इन एडिशनल फंडिंग 2034 तक चाहता है। टाइगर कंजर्वेशन कोalition is independent group of organizations. It brings together leading biologists and experts in wildlife with focus on achieving tiger conservation. Which are the member organization? International Union for Conservation of Nature, United Nations Development Program, UNDP, Wildlife Conservation Society and World Wildlife Fund for Nature. So ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपसे यूपीएससी क्या पूछ सकता है? They can ask you what is Paro statement. Option A, tiger conservation. Option B, artificial intelligence. Option C, cryptocurrency, something like this. So Paro statement, it is located to what? It is located to the tiger conservation. और ये जो है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है? IUCN, UNDP, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ओके, सो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप अलग से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। Tiger Landscape Investment Fund, it is presented by the UNDP. Again, this is important. Okay, Tiger Landscape Investment Fund कौन present करता है? United Nation Development Program, and it uses nature positive business approach. Then you have Tiger Bonds. This is given by whom? This is given by the Asian Development Bank to engage the private sector investors. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आपसे यूपीएससी अगेन इट कैन, अगर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन डालना चाहेगा ऑन टाइगर कंजर्वेशन, सो टाइगर बॉन्ड्स बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एंगेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर। ओके, विच वन? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वही WWF है जो हम बात करते हैं, आपने देखा होगा। यस, ओके, तो उसके बाद जो है, लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन टाइगर। हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में यू माइट नो अबाउट इट कि जो पांडा इज द मैस्कट ऑफ WWF।
है ना, उसके उसके जो लोगो है उस पे पांडा का फोटो रहता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन टाइगर। सो टाइगर जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है आपको? बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये दीज आर द टाइगर रेंज कंट्रीज। इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में आपको शिवालिक गैंजेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स एंड सुंदरबंस। तो टेक्निकली ऑल द एरियाज ऑफ इंडिया। आप राजस्थान में बोलो, राजस्थान में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलता है, साउथ में जो है जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर मिलता है, आपको ईस्ट में मिलता है ना। सो टाइगर क्या है? सेंट्रल इंडिया में मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मिलता है। तो टाइगर इज अ पैन इंडिया, इट्स अ पैन इंडिया एनिमल स्पीशीज। मैक्सिमम कहाँ मिलता है? और मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। सो दिस इज एक्चुअली अ PYQ। ये क्या है आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट इज अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ इंडिया, इट्स ऑल्सो एन अम्ब्रेला स्पीशीज। तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होता है फ्रेंड? हमने बात की थी ना तीन टाइप की स्पीशीज के बारे में। वन वाज द कीस्टोन स्पीशीज, वन वाज द इंडिकेटर स्पीशीज, एंड वन वाज द फ्लैगशिप स्पीशीज। नाउ फ्लैगशिप स्पीशीज जो है, इट इज बेसिकली एन ambassador. It is the most well known species in the popular culture, and it is selected as an ambassador जिसको यूज करके दूसरे एनिमल्स जो है उसका हम लोग प्रिवेंशन, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक पांडा। पांडा, यू नो, एवरीबडी नोज दैट हु इज अ पांडा। कुंफू पांडा वगैरह जैसे जो मूवीज आई है उसके वजह से सारे बच्चे जानने लगे हैं। सो पांडा, इट्स अ ह्यूजली पॉपुलर स्पीशीज, सो इट इज यूज्ड to protect the different species who call the forests of China their habitat. Okay. So these animals, they are solitary, they are mostly nocturnal. जो टाइगर होता है रात को शिकार करेगा, solitary अकेले शिकार करेगा, and territorial animal, it is very particular about its area. Okay, अगर इसके एरिया में आप चले जाएंगे दूसरा टाइगर, so it will fight to death. And territory of an adult male, it encompasses territories of 2 to 7 females. Tiger stripes are individually as unique as the human fingerprints. What does it mean? It means that on two tigers, no two tigers, they share the same, yes, the stripes. तो इनका stripes जो होता है वो अलग होता है. No two tigers, what happens here is they do not share the same stripes. जैसे हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है, जैसे आप फिंगरप्रिंट डालिएगा, मैं फिंगरप्रिंट डालूंगा तो हमारा फिंगरप्रिंट अलग होगा, उसी तरीके से इट माइट नॉट बी एविडेंट टू द नेकेड आइज, बट व्हेन यू रिसर्च, व्हेन यू लुक क्लोजली, नो टू टाइगर्स हैव द सिमिलर स्ट्राइप्स पैटर्न। कॉन्जर्वेशन एफर्ट के बारे में हम बात करते हैं। सो प्रोजेक्ट टाइगर, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 and it is a centrally sponsored scheme with in situ conservation. Now, what is the difference between ex situ and in situ conservation? In the in situ conservation, we protect the animal in its own habitat, whereas in ex situ conservation, we take out the animal from its habitat, like zoo, and we then take the conservation measures. Okay, so this is something that you need to know. Then there is NTCA. It is a statutory body constituted under WPA 1972, that is the Wildlife Protection Act 1972. It was amended in 2006 to administer the Project Tiger. Now, who is the chairman of NTCA? हमने डिस्कस किया था क्लास में, चेयरमैन कौन है NTCA का? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। यस। सो ये जो है ना, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द चेयरमैन, प्लीज रिमेंबर। Chairperson is the Union Minister of for Environment, Forest and Climate Change. Okay, and then who is the Vice Chairperson? It is the Minister of State of the Ministry of Environment Forest.
देखिए, आई जस्ट रिपीट इट अगेन, समबडी हैज आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू जो होता है, हम एनिमल को उसी के हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं। अगर टाइगर कहीं रहता है तो उसी का जो एरिया है ना, उसको हम लोग नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, समथिंग ऐसे डिक्लेयर करके और फिर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एक्स सीटू जो है, टाइगर को उठा के जू में डाल देते हैं, या कहीं पर किसी जैसे वनतारा टाइप के जो एनिमल रिजॉर्ट जिसको कहते हैं ना, उसमें डाल देते हैं। यस। सो प्राइम मिनिस्टर किसके चेयरमैन है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के हैं, एनटीसीए के आपके मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है। इट इज ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, विच इज द नेशनल aquatic एनिमल ऑफ इंडिया। द नेशनल aquatic एनिमल इज द गैंजेटिक डॉल्फिन। ओके। एम स्ट्राइप्स, सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक 2017 में यूपीएससी जो है उसने पीवाईक्यू पूछा था ये एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So M Stripes is a digital monitoring tool. So M Stripes, okay. M Stripes से ही पता चल रहा है, you can do the word play association कि stripes किसका होता है, टाइगर का होता है, okay. Then you have the Global Tiger Initiative. It is World Bank's initiative. Then you have the Global Tiger Forum. It is an international intergovernmental body. देन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब क्या होता है? बाकी सारे जो गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल डिस्कस हाउ टू कंजर्व द टाइगर। ओके। उसके बाद जो है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम कैट्स कहते हैं, कैट्स जैसे टाइगर इज फ्रॉम द कैट फैमिली, तो उस केस में जो है एक कैची नाम देने के लिए हमने क्या नाम दे दिया? कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड कैट्स। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स, Tigers Alive initiative is also there. Okay. Yes. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आई थिंक दिस वाज, यस, सो समबडी हैज आस्क्ड कि एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या है? एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म, एम स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग एंड स्ट्राइप स्टैंड्स फॉर, so M, yes, M is the monitoring, stripes stand for System for Tigers Intensive Protection and Ecological Status. Okay. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आई थिंक दिस वाज आल्सो कवर्ड इन क्लास बिफोर वाया द करंट अफेयर्स पोर्शन। सो आईबीसीए जो है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन द 50th ईयर ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर इन 2023। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, निकारागुआ which is located in Central America, Eswatini, which is located in Southern Africa, and Somalia, which is located in East Africa, they have joined the Big Cat Alliance। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इंडिया में है। दे विल स्ट्रेंथन, आईबीसीए जो है आपका इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ये जो है स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज। दे आर टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ओके। सो इंडिया के पास इसमें से 5 हैं, एक्सेप्ट प्यूमा एंड जैगुआर। अभी चीता भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके पहले 4 थे। With the introduction of cheetah, India now has 5 out of the 7 big cats. Puma and jaguar जो है, they are not found in India. So अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यूमा और जैगुआर they are endemic to where, तो प्यूमा कहाँ से एंडेमिक होता है? जिसके आपको पता होगा, जिसके नाम पे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड भी है। सो प्यूमा जो है, दे आर नेटिव टू दी अमेरिकाज। ओके। प्यूमा जो है, दे आर नेटिव टू दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके। जैगुआर एज वेल आपको अमेजोन बेसिन के पास मिलेगा ज्यादा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, दे आर नॉट एंडेमिक टू एशिया और अफ्रीका। द प्यूमा एंड जैगुआर, दे आर एंडेमिक टू अमेरिकाज। ओके। सो मल्टी कंट्री एंड अ मल्टी एजेंसी कोalition है। पार्टिसिपेंट्स कंसिस्ट ऑफ 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज, नॉन रेंज कंट्रीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिग कैट कंजर्वेशन। अगर आप एक टाइगर रेंज या किसी लेपर्ड रेंज कंट्री के मेंबर नहीं भी है, या आपके कंट्री में कोई ऐसा रेंज नहीं है, लेकिन यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन बिग कैट कंजर्वेशन, यू कैन ज्वाइन आईबीसीए। ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल।
and 9 international organization have also consented to be the partner organization. देखिए कभी भी जो है ना इस टाइप का अलायंस जो होता है या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज होते हैं, सो जनरली वी इनवाइट द एनजीओज, we invite the United Nations organization on board so that effectiveness can increase. Why? Because IUCN will be better at conservation tactics than a country, yes or no? WWF will know better how to conserve than maybe a country. So ऐसा होता है because the know-how in the international organization is very high. They have a team of researchers, they have a team of experts. तो इसीलिए जो है they are invited. India जो है it has supported this initiative with 150 crore rupees for 5 years. एंड आईयूसीएन स्टेटस अगर हम बात करें, सो टाइगर का इंडेंजर्ड होता है, वल्नरेबल होता है लायन का, चीता का, स्नो लेपर्ड का, नियर थ्रेटेंड होता है जैगुआर का, एंड प्यूमा इज व्हाट लीस्ट कंसर्न. ओके, ऑल 5 बिग कैट्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 and 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स. तो ये शेड्यूल 4 का क्या सीन है दोस्त? हमने तो पढ़ा था ना कि शेड्यूल 1 होता है ना, शेड्यूल 1 होता है, लेकिन आपको याद होगा वी हैड रेड आल्सो द 2022 अमेंडमेंट. ऑल द स्पीशीज हु आर कवर्ड अंडर साइट्स, CITES, which is basically what? Which is basically the trading, the international trading of animals, जहां पर वो प्रेजेंट हैं. तो इंडिया ने क्या किया था? टू कंप्लाई विद द साइट्स नॉर्म, इंडिया इट हैड upgraded, or it had amended its act, the WPA Act 1972 in 2022. और अब जो है हम साइट्स, विच इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसको क्या कर रहे हैं? उससे उसको उसका क्लोजली उससे अलाइन करने के लिए हमने जो है शेड्यूल्स जो है उसको चेंज कर दिया. पहले इसमें वर्मिन कैटेगरीज वगैरह होती थी, अब वर्मिन कैटेगरीज हमने एलिमिनेट कर दिया. किसके पास अथॉरिटी दी गई है वर्मिन के लिए? टू डिक्लेयर अ वर्मिन, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, the states they can request, but it is the central government who can ultimately give the go ahead. एलिफेंट सेंसस 2023 के बारे में बात करते हैं. सो एलिफेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट जो है कर्नाटका में है. दिस इज एक्चुअली अ PYQ. एक क्वेश्चन आया था, फीमेल एलिफेंट्स आर द लीडर ऑफ द पैक, दे कैन हैव अ जेस्टेशन पीरियड फॉर 20 समथिंग लाइक दिस 22 months. तो वो क्वेश्चन आपको याद होगा PYQ में था. सो दिस इज एक्चुअली, उसमें ही ये पूछा गया था विच स्टेट इज द टॉप. तो उसमें यूपीएससी ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग केरला दिया था, और केरला की जगह आंसर क्या था? कर्नाटका. सो कर्नाटका इज द नंबर 1 स्टेट. ओके, कर्नाटका जो है इट्स द नंबर 1 स्टेट among the southern states with over 6,000 elephants. A high death rate, 40% among juvenile elephant has been seen, aged 10 and below, and it is attributed to elephant endotheliotropic herpes. Okay, herpes virus. So this is very, very deadly for the, okay, yes, this is very, very deadly for the elephants. तो EEHVs, CDV के बारे में सुना है? वेरी सिमिलर, canine distemper virus. This had obliterated the population of Asiatic lions. Okay, CDV जो है उसने एशियाटिक लायन जो गिर फॉरेस्ट में रहते हैं उनके पॉपुलेशन को मेजर अटैक किया था. ओके, यस, CDV डॉग्स वगैरह के, अगर आप वेट के पास ले जाएंगे डॉग्स को, तो CDV का भी वैक्सीनेशन पड़ता है डॉग्स में. यस, डॉग्स में भी होता है. सो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड WPA शेड्यूल 1. IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड. हैबिटेट क्या है एलिफेंट का? एशियाटिक एलिफेंट का. सो इट इज फाउंड इन इंडिया में अगर बात करें तो सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, and in some parts of southern peninsular India. India is home to over 60% of the world's elephant population. Highest population is in Karnataka, followed by Assam and Kerala.
कुमकी एलिफेंट क्या होता है? सो इट इज अ टर्म यूज्ड इन इंडिया फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स that are trained to be used in operation to trap the wild elephants. Okay, so these are what? ये बेसिकली कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स होते हैं जिनको एज अ डिकॉय यूज किया जाता है ताकि वाइल्ड एलिफेंट्स को कैप्चर कर दिया जा सके, एंड दीज आर ट्रेन्ड एलिफेंट्स। यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम है WPA 2022 अमेंडमेंट में। कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू द एलिफेंट्स? द प्रॉब्लम इज, ओके, द प्रॉब्लम इज the elephants which are employed by the temples। ओके, जो टेम्पल रिचुअल्स वाला है, तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब उनका जो है ट्रांसफर को इन्होंने रिलैक्स कर दिया है। ओके, सो पहले रिलैक्स नहीं था, पहले बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट अब जो साउथ इंडियन टेम्पल्स स्पेशली वी हैव लॉट्स ऑफ एलिफेंट्स देयर। सो उन जो टेम्पल्स एम्प्लॉय करते हैं एलिफेंट्स को, उनके ट्रांसफर को इन्होंने क्या कर दिया है, उसको रिलैक्स कर दिया, विच हैज बीन ए मेजर स्टिकिंग पॉइंट। ओके, यस, अदर पर्पसेस भी है, तो टेम्पल रिचुअल्स एंड अदर पर्पसेस, यू डोंट नो व्हाट इज द स्कोप ऑफ अदर पर्पसेस। ओके, सो इंडेंजर्ड इनका होता है आईयूसीएन स्टेटस, हाईली इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स एंड दिस यूज सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। They are one of the three subspecies of Asian elephants. So other two है सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट। तो हमारा एलिफेंट जो है, अगर मैं दो टाइप का कहूं तो एक एशियाटिक एलिफेंट हो जाता है, एक अफ्रीकन एलिफेंट हो जाता है। और एशियाटिक एलिफेंट में जो है आपका इंडियन एलिफेंट, उसके बाद सुमात्रन एलिफेंट, एंड देन फाइनली एज यू कैन सी हियर वी हैव द श्रीलंकन एलिफेंट। ओके, तो इसमें से बड़ा कौन सा एलिफेंट होता है? एशियाटिक बड़ा होता है, अफ्रीकन बड़ा होता है? African is larger or Asiatic? The African is larger. Gestation period up to 22 months. So up to 2 years जो है, almost 2 years. Longest gestation period मतलब pregnancy period. Gestation का मतलब क्या होता है? Pregnancy period. Lifespan is 60 to 70 years. Leader of an elephant group is a female. This is actually a PYQ. थ्रेट्स की अगर हम बात करें, सो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, expansion of agriculture and industry, human elephant conflict, and poaching. These are the threats that are bugging the elephants. Conservation measure में Project Elephant was launched in 1992. So which came first, Project Tiger or Project Elephant? It was the Project Tiger which came first, and then came the Project Elephant. There are 33 elephant reserves in India in 14 major elephant states. Okay, so as you can see IUCN status में एशियन एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन का सवाना जो ग्रासलैंड के एलिफेंट्स हैं, यस, ये आपका इंडेंजर्ड होता है, और फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एशियन एलिफेंट्स आर स्मॉलर, African elephants are larger in size. Asian elephants have smaller rounded ears. African elephants have large fan-shaped ears. Asian elephants, they have comparatively smoother skin. African elephants, the skin is wrinkled. Asian elephants have twin domed head, whereas African elephants have a single dome shaped head. Okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पर twin domed head है ना, single dome shaped head. Single dome, and here is twin dome. Only some male Asian elephants have tusks. The tusks are absent in females, whereas in African elephant, both male and female African elephants have growing tusks. अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024। ये किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। सो IRF जैसे फाउंडेशन लगा रहे इंटरनेशनल लास्ट में नाम के अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लगा रहे, so what kind of organization it is it an NGO or is it an intergovernmental organization? It is an NGO, non-profit. Okay, so it's IRF initially called the International Black Rhino Foundation in 1991. It is dedicated to the survival of world's rhino species.
So what are the finding of the reports? With all five species combined, there are just under 28,000 rhino left. Rhino poaching in Africa has actually increased by 4%. What is the reason for rhino poaching? It is the horn of the rhino which is used, its powder is used in Chinese medicine as an aphrodisiac. मतलब vitality के लिए और स्टैमिना के लिए जो है उसको यूज किया जाता है इन बेसिकली इन ओल्डर पीपल दे कंज्यूम द चाइनीज मेडिसिन. Rhino poaching in Africa, it has increased, and number of white rhinos they have increased, but greater one horned rhino, it has the number has remained the same. So greater horned rhino is actually your Indian rhino. So उसका नंबर जो है वो आपका सेम है, लेकिन व्हाइट राइनो का नंबर इंक्रीज हुआ है. सो यू सीन दोस पिक्चर्स फ्रॉम अफ्रीका जहां पर राइनो के चारों तरफ आर्म्ड गार्ड्स रहते हैं. सो वो क्यों रहते हैं? बिकॉज द पोचिंग इज very severe. Okay, so they have 24/7 protection because poachers, they are not very educated, they're idiots, so they kill the animals and unka population ekdam kam hai. So what happens is that 24/7 armed guard protection is provided to the African rhinos. So five species of African rhino, two African जिसमें white rhino, black rhino होता है, and three Asian rhino, Indian rhino, Sumatran rhino, and Javan rhino are there. राइनो कंजर्वेशन इनिशिएटिव इंडिया में क्या क्या है? नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 2019 टू कंजर्व द इंडियन राइनो. देन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो. अगर मैं आपको कहूं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तो आप समझ सकते हैं कि वो मैं राइनो की बात कर रहा हूं. इफ आई टेल यू अबाउट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, सो विल यू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइनो? नहीं. वाई? बिकॉज G20 में अगर आपको याद होगा, सो अ लॉट ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस वेयर देयर. AI ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे आपके जो है डिक्लेरेशंस आ गए थे. सो उस केस में जो है नहीं समझ में आएगा आपको, इसीलिए पूरा बोलना होगा. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो. ओके. Then you have Indian rhino vision in 2020. What is the difference between African rhino and Asian rhino? So African rhino, the white rhino is the second largest land mammal after elephant. Asian rhino, the Indian rhino is largest of all Asian rhino species. उसके बाद जो है इनका अपीयरेंस कैसा होता है? मोर अग्रेसिव होता है अफ्रीकन राइनो का, whereas the Asian rhinos are less aggressive. अफ्रीकन राइनो टू हॉर्न्स. एशियन राइनो में सुमात्रन राइनो का दो हॉर्न होता है, वेरस जावन राइनो और इंडियन राइनो का कितना हॉर्न होता है? एक हॉर्न होता है. द अफ्रीकन राइनोज आर पुअर स्विमर्स and they can drown in the deep waters, whereas Asian rhinos are good swimmers. Does it make sense for the Asian rhinos or the especially the Indian rhinos to be good swimmers? अगर आपको याद होगा तो काजीरंगा क्या होता है, फ्लड हो जाता है ना. सो आपने देखा है राइनो स्विम कर रहे थे एंड दे आर गेटिंग टू द सेफ एरियाज, है ना. तो ब्रह्मपुत्रा में जब भी फ्लड्स आते हैं, सो आपका जो असम के जितने भी राइनो होल्डिंग कंजर्वेशन साइट्स होते हैं दे गेट फ्लडेड. लेकिन फिर भी जो है राइनोस दे आर अडेप्टेड टू स्विमिंग, स्पेशली द इंडियन राइनोस. ओके. द व्हाइट राइनो इज नियर थ्रेटेड वेयर एज द ब्लैक राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इनका हैबिटेट क्या होता है अफ्रीकन राइनोस का? ग्रासलैंड, सवाना, श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स में भी थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, डेजर्टेड कंडीशन में मिलते हैं रादर. वेराज एशियन राइनोस कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानास और ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में. इंडियन राइनो इज वल्नरेबल. सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल के बारे में जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, व्हाई इज इट सो प्रॉब्लमैटिक? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन जो है, बिकॉज इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. इसका नंबर जो है ड्विंडल कर गया है, बहुत कम. सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन्स, विच आर टू ऑफ द फोर बस्टर्ड स्पीशीज. सो एक आपको चीज पता है कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, the people they wanted this to be the national bird. Yes. Why it was not called the national bird? Because the name could have led to embarrassment. Bastard जो है वो bastard की तरह आप सुन सकते थे. So in international fora it could have led to
confusion and embarrassment for India. That is why a safe choice, peacock, it was picked. Okay. So यहाँ पर आप देखते हैं बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम. It was started in 2013 and then it was changed to Bustard Recovery Project in 2016 and extended till 2033 project implemented by Wildlife Institute of India. और इसका फंडिंग कौन दे रहा है? कैंपा, विच इज नेशनल कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. ओके. इसका पार्टनर एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र है, जहां जहां मिलता है. ओके. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बस्टर्ड recovery and what is the problem with bustard conservation? There are two problems. One is the power lines. ओके. तो पावर लाइंस जो आपके राजस्थान के डेजर्टेड एरियाज में है, वहां पर बस्टर्ड्स इंटैंगल होके दे गेट शॉर्ट सर्किट्स. एंड इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट ऑल द पावर लाइंस शुड बी अंडरग्राउंड. ओके. जितने भी पावर लाइंस हैं उनको अंडरग्राउंड कर देना चाहिए. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के साइड जो है, पाकिस्तान के साइड में ये एनिमल्स आपको जाते हैं, दे आर ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन इनका होता है. लेकिन उस केस में क्या हम देख रहे हैं? पाकिस्तान में शिकार खेल लेते हैं लोग. द कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इज वेरी पुअर, वेर एज इन इंडिया इट इज वेरी गुड. ओके. तो इंडिया वाले अपने साइड से हम कर रहे हैं अपना 100%, बट पाकिस्तान में जो है इसको हंट कर दिया जाता है. ओके. नाउ व्हाट इज कैंपा? सो ये जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी होता है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए हमें कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए. ओके. सो इसमें होता क्या है? इट्स एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू ओवरसी द मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स विच आर कलेक्टेड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन. मतलब क्या होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का? आपने कहीं पे पेड़ को गिराया तो आपने उसके कॉम्पनसेशन में कहीं और पेड़ लगा दिए. तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. फाइनली 2004 में कैंपा को एस्टैब्लिश किया गया था. ओके. और यस, एंड जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 पास हुआ था. सो 2016 में इसको क्या हो गया था? स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल गई थी. ओके. मतलब अब कैंपा जो है इट इज ए स्टैट्यूटरी बैकिंग, इट हैज अ स्टैट्यूटरी बैकिंग. और ये जो है नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड किसके अंदर है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर है. ओके. और स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड इज अंडर दी पब्लिक अकाउंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो ये याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेटेड फंड में टैक्सेस रहते हैं और पब्लिक अकाउंट्स में क्या रहता है? पेनल्टीज और क्या रहता है? एनी काइंड ऑफ फीस, है ना. सो ये जो चीज है वो हम पब्लिक अकाउंट में देखते हैं. और ये इसका फंड एलोकेशन जो है कैसे होगा? सो 90% ऑफ द फंड इट विल बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स, whereas 10% ऑफ दैट विल बी एलोकेटेड टू द सेंट्रल लेवल. उसके बाद जो है इसका यूटिलाइजेशन किस लिए होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ओके. Which are the collaborating agencies in the Bustard Recovery Program? So you have BNHS, Bombay Natural History Society. This is again a PYQ. Okay. So ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का है क्या? नहीं, इट इज नॉट मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ने इस तरीके से पूछा था. आंसर वाज इट इज एन एनजीओ. द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या करता है? साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस ये फैलाता है. बस्टर्ड्स जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स WPA शेड्यूल 1. हैबिटेट इनका कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है. और प्रॉब्लम्स क्या क्या है इनका? पेस्टिसाइड यूजेज इन ब्रीडिंग ग्राउंड, उसके साथ साथ पावर लाइंस. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था इस पे कि आप सारे पावर लाइंस जो कि डेजर्ट एरिया में है, विच इज वेरी डेडली फॉर द एनिमल्स, फॉर दीज बस्टर्ड्स, उसको अंडरग्राउंड कीजिए. ओके. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है
उस केस में हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान और गुजरात में मिलता है। और ये इसका पॉपुलेशन कुछ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में भी दिख जाता है। इट इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इंटेंगलमेंट विथ पावर लाइन, ओके, दिस इज अ मेजर इशू विद द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB। और ये जो है बस्टर्ड आपका क्या है, दीज आर द लेसर फ्लोरिकन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। कंजर्वेशन एफर्ट क्या है, नेशनल पार्क्स लाइक डेजर्ट नेशनल पार्क। सो डेजर्ट नेशनल पार्क इज अ PYQ, आपसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। ये जो PYQ है इसमें ये कहता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर किसी भी टाइप का ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। इज इट ट्रू? Is there any human habitation inside? The answer is yes, there are human habitation inside the desert national park. Okay, उसके बाद नालिया ग्रासलैंड, जिसको लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, दीज आर द की हैबिटेट। GIB, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान। Artificial insemination at National Breeding Center in Jaisalmer has been established, and training of personnel for artificial breeding has happened at the National Avian Research Center, Abu Dhabi. Okay. हाउ अ बर्ड सेंचुरी, देखिए बर्ड सेंचुरी अपने कंट्री में, हम पाकिस्तान का ठेका लेके रख सकते हैं क्या कि पाकिस्तान अपनी कंट्री में क्या कर रहा है, वहां शिकार खेल रहा है, पासेस दे रहा है, शेख को बुला रहा है सऊदी से। तो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। वंस दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रॉसेस द पाकिस्तान बॉर्डर, हम सिर्फ क्या कह सकते हैं कि आप जो है यू प्लीज हेल्प अस, उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कितने जाहिल है, क्या कर रहे हैं उनके साथ, ओके, उनको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ओके, सो ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर है। इट इज अमंग द 22 स्पीशीज अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? सो एग्रो ग्रासलैंड ओमनीवोरस, मतलब omnivorous means they both eat the fruits, plants, and the animals. So they lack frontal vision. Males have a gular pouch to fill air and exhale with great humming sound to attract female. तो mating behavior है basically. The males they play no role in the incubation and care of the young. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी रिसेंटली बैन किया था पावर लाइंस पे, दे सेड कि आप अंडरग्राउंड कीजिए, देयर शुड बी नो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओके, और ये जो है व्हाट हैज हैपेंड वाज कि उन्होंने अपना ऑर्डर जो है उसको मॉडिफाई किया था। ये बोला था कि देखिए क्या ये समझ में आता है, पूरे रीजन में अंडरग्राउंड पावर लाइन डालना ये फिनेंशियली फीजिबल है, फिनेंशियली और टेक्निकली फीजिबल नहीं है। ओके, सो ये इन्होंने क्या कहा कि पहला ऑर्डर क्या था कि पूरे रीजन में, जो पूरा आपका राजस्थान वाला, वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, वहां पर अंडरग्राउंड पावर लाइन आप डालें। दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, दूसरा है कि यहाँ पर जो है बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है वेस्टर्न राजस्थान, बिकॉज ऑफ द डेजर्टी एरिड कंडीशन, इट्स अ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, तो इसी में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, and they constituted an expert committee to determine the scope, feasibility, and extent of overhead and underground electric line। देखना है कि कहाँ कहाँ पे feasible है, कहाँ कहाँ एनिमल्स ये जाते हैं। ओके, तो उसी जगह पे जो है आप अंडरग्राउंड कर सकते हो, बाकी जगह पे यू कैन कीप द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड इट्स 50 years। सो इंडिया जो है launched its crocodile conservation project where in Bhitarkanika National Park. So Bhitarkanika National Park in 1975 with the assistance of UNDP, that is the United Nations Development Program, and United Nations FAO, Food and Agricultural Organization जो है, उसके थ्रू हमने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भीतरकनिका में हमने डाला था। अच्छा, वेयर इज, ओके, वेयर देयर इज वन, आप बता सकते हो एक ऐसा हैबिटेट जहां पर सारे टाइप के क्रोकोडाइल्स हमें मिलते हैं, ऐसा हैबिटेट जहां पर हमें सारे टाइप के क्रोकोडाइल्स हमें मिलते हैं। कैन आई से महानदी? महानदी, यस। सो इन ओडिशा महानदी हमें मिलता है। लास्ट ईयर पढ़ा था हमने, अगर प्रीलिम्स प्रोग्राम वाले जो थे उनको याद होगा, लास्ट ईयर जो है हमने इसका क्वेश्चन भी किया था।
महानदी जो है वहां मिलता है हर टाइप का आपको। What is Bhitarkanika National Park? It's a Ramsar site. It's a national park. It is India's second largest mangrove ecosystem, and it is located where? It is located in Odisha, and it is second largest ecosystem, mangrove ecosystem after the Sundarbans. It is essentially a network of creeks and canals which are inundated with waters from rivers Brahmani, Baitarani, Dhamra and Patasala. इसमें से जो है ब्रह्माणी, इट्स अ PYQ 2021 में पूछा गया था। बैतरानी इज इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों रिवर्स को आप याद रखिएगा। ब्रह्माणी रिवर, बैतरानी रिवर। याद है ब्रह्माणी रिवर का क्वेश्चन था, वंशाधारा ब्रह्माणी, इसमें से कौन से, दे हैड आस्क्ड कि ईस्टर्न घाट से फ्लो कर रहा है ना। सो उसमें जो है सुबर्णरेखा, वंशाधारा, ब्रह्माणी, ऑल दीज वेर देयर। And Bhitarkanika is the home to the largest congregation of saltwater crocodile along with water monitor lizard, pythons, hyenas, जो आपको यहाँ मिल जाएगा। Crocodiles are the largest surviving species of the Reptilia vertebrate class. Except for one saltwater species, crocodiles are mainly freshwater. Okay, habitation इनका रहता है। Nocturnal animals होते हैं and they are poikilothermic. What is poikilothermic? They can regulate their body temperature only to limited degree. तो हम कहते हैं ना कि reptilians, okay, why they can not feel emotions? हम बोलते हैं ना this is cold blooded murder. Cold blooded murder सुना है आपने? So what does it mean? Without any emotion. हम हैं warm blooded, the human beings and the other mammals, they are warm blooded. So उसमें क्या होता है? उसमें हम we can feel the emotions, we can regulate our temperature. Whereas cold blooded में क्या होता है? यहाँ पर जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते, यू नीड टू स्टे इन अ सेट एनवायरनमेंट। ओके, ह्यूमन बींग्स आप जैसे शिमला जा सकते हैं ना मैगी खाने, और आप केरला भी जा सकते हो स्विमिंग करने, तो ह्यूमन बींग्स हैव अ वाइडर रेंज ऑफ टॉलरेंस। वेराज ये जो होते हैं घड़ियाल वगैरह, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दे नीड टू बी इन अ फिक्स हैबिटेट। ओके, घड़ियाल, सो इसको घड़ियाल जो है इट्स कॉल्ड गैवियालिस गैंजेटिकस, इनहैबिट द फ्रेश वाटर्स ऑफ चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन एंड गंडक। तो चंबल में इनका क्या है? कॉन्जर्वेशन ग्राउंड है। दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये अपेंडिक्स 1 में रहते हैं और शेड्यूल 1 में इनको डाला गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में है। दे प्राइमरीली ईट द फिश एंड दे आर नेम्ड घड़ियाल। वाई? बिकॉज दे हैव अ बल्बस स्नाउट। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है? इनके पास एक बल्बस स्नाउट है। ओके, अब हम बात करते हैं फंगा के बारे में। उन देखिए फंगा जो है ना, लास्ट ईयर से ये न्यूज में है। उसके पीछे रीजन क्या है कि फंजाई जो है, फंजाई फाउंडेशन थ्रू द UN बायोडाइवर्सिटी, इट हैज अर्ज पीपल टू यूज द वर्ड फंगा, ओके, व्हेनेवर दे से फ्लोरा एंड फौना। सो दे फ्लोरा, फौना एंड फंगा। पहले हम क्या कहते थे? फ्लोरा एंड फौना। नाउ द फंगाई फाउंडेशन इज सेइंग फ्लोरा, फौना एंड फंगा। आप कहिए भाई, ये फंजाई इज अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड, इट्स अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड स्पीशीज, इट्स अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज एक तो सबसे पहली बात, काफी ज्यादा इसमें डाइवर्सिटी है, उसके साथ साथ ये जो है ट्री ग्रोथ में, स्टोरिंग कार्बन, कार्बन रिजर्वॉयर में, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, उसमें जो है हेल्प करता है। इसका जो इट हैज अ ह्यूज डाइवर्सिटी फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। तो सिंगल सेल का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल जो होता है इट्स अ वेरी वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करता है बेसिकली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें हमें देखने को मिलता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ओके, विदाउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, ओके, मेल और फीमेल ऐसे करके। दूसरी चीज क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तक जो है हम देखते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है इसका, ट्रॉपिकल, टेम्परेट टू आर्कटिक रीजन, हर जगह मिलता है। दीज आर सुपर एनिमल्स, या सुपर स्पीशीज आप कह सकते हैं। कैसा है ये? सुपर स्पीशीज है, हर जगह मिलेगा। फ्रॉम द टुंड्रा, फ्रॉम द बोरियल फॉरेस्ट टिल द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हर जगह जो है आपको मिलेगा। ओके, सो माइको रेमेडिएशन, माइको फाइको समझ में आता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी।
तो उस केस में हम क्या देखते हैं, उस केस में जो है हम देखते हैं, इफ यू मस्ट रिमेम्बर, लाइकेन। लाइकेन आपने आपको याद होगा तो, है ना। सो उसमें क्या था, एक माइको ऑर्गेनिज्म था, एक था फाइको। तो माइको इज रिलेटेड टू फंजाई, वेर एज फाइकोलॉजी और फाइको इज रिलेटेड टू एल्जी। ओके। माइको रेमेडिएशन क्या होता है, आप फंजाई यूज करके कॉन्टामिनेंट्स को जो है स्वैम्प कर रहे हो, यू आर ड्रेनिंग द contaminants फ्रॉम द एनवायरमेंट यूजिंग फंजाई। और वही चीज अगर एल्जी यूज करके हम करें तो क्या हो जाएगा, फाइको रेमेडिएशन हो जाएगा। यहाँ माइको रेमेडिएशन इज यूजिंग फंजाई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर पोल्यूशन रेमेडिएशन। उसी तरीके से फाइको रेमेडिएशन क्या हो जाएगा, आपका एलजी हो जाएगा। ओके। और आपका जो हमने बात किया था लाइकेन के बारे में, सो लाइकेन आर व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज, फ्लैगशिप, कीस्टोन या इंडिकेटर। दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर ऑफ व्हाट, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। अगर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो दे डिसअपियर, पोल्यूशन घट जाता है सो दे कम बैक। देयर प्रेजेंस टेल्स अस दैट द एनवायरमेंट इज लेस पोल्यूटेड और इट इज क्लीन। तो लाइकेन किससे बनता है, एक इसका एल्गल पार्ट होता है और एक इसका फंगल पार्ट होता है। फंगल पार्ट प्रोटेक्शन देगा, एल्गल पार्ट इसको खाना देगा। ओके। मेडिसिन के में भी यूज होता है फंजाई, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंड पोटेंशियल साइकोथेरेपी। तो साइलोसाइबिन, ये आपको याद होगा अगर खोला होगा आपने उसको साइंस एंड टेक वाला इंडियन एक्सप्रेस में, तो साइलोसाइबिन जो है उसमें एक मैंने दे रखा है। तो ये साइलोसाइबिन न्यूज में क्यों है, व्हाई इज दिस साइलोसाइबिन इन न्यूज, तो इसको एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखते हैं। साइलोसाइबिन मशरूम जो है, इसको मेडिसिन की तरह बहुत लोग यूज कर रहे हैं। इट्स अ नेचुरली अकरिंग साइकेडेलिक कंपाउंड जो कि मशरूम में मिलता है, मैजिक मशरूम जो है इसको हम कहते हैं। और ये जब आप खाते हैं साइलोसाइबिन, सो इट गेट मेटाबोलाइज्ड इनटू साइलोसिन। ओके। और ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है आपके ब्रेन के सेरोटोनिन रिसेप्टर से, और फिर क्या करता है, हेलुसिनेशंस देता है, मूड चेंजेस और ऑल्टर्ड परसेप्शन। सो यू गेट यूफोरिया, यू गेट ऑल्टर्ड सेंसरी परसेप्शन। इट कैन बी यूज्ड इन मेंटल कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस। वहां पर जो है साइलोसाइबिन में यूज हो सकता है, बट इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है एंड इट कैन लीड टू साइकोसिस एज वेल। इसको डिप्रेशन, एंजाइटी, यस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन वगैरह में जो है यूज कर सकते हैं। ओके। सो आई थिंक आई ऑल्सो यूज टू ईट वन मशरूम कॉल्ड नूट्रोपिक्स, सुना होगा आपने, नूट्रोपिक्स। सो ये जो है ना लायंस मेन मशरूम, आई यूज टू ईट समथिंग, तो वो कहा जाता था लायंस मेल मेन मशरूम। लायंस मेन समझते हैं, लायन का जो मेन होता है, जो उनकी लायन का जो मूंछ होता है उसके तरीके से वो मशरूम दिखता था। एंड इट इज सेड दैट दैट मशरूम हैज द एबिलिटी, that mushroom had the ability to change the plasticity of your brain. So mushrooms जो है, फंगा जो है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू ऑल्टर योर ब्रेन केमिस्ट्री। ओके। अगर हम बात करें, कंपेयर करें फ्लोरा, फौना और फंगा को, तो फ्लोरा इसमें किंगडम प्लांटे में आता है, फौना एनिमेलिया में, फंगा फंजाई किंगडम में आता है। एग्जाम्पल क्या है फ्लोरा का, एल्जी, फ्लावर्स, ट्रीज। फौना इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स। फंगा में मशरूम आता है, मोल्ड आता है, ईस्ट आता है ना। मशरूम जो है, ये क्वेश्चन आया था 2022 में, गुची मशरूम मोदी जी खाते थे, याद होगा आपको। गुची मशरूम ऐसा कहा जा रहा था, है ना। मोदी जी शिटाके शायद खाते हैं, शिटाके या गुची खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। यस। सो गुची मशरूम बहुत ज्यादा महंगा कहाँ पर मिलता है, ये जो है आपको उत्तराखंड के फॉरेस्ट में मिलता था। ओके। यस। सो 2022 में क्वेश्चन था। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लोरा में, थ्रू सीड, स्पोर्स एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फौना में कैसे होता है, थ्रू सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगा में स्पोर्स या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। फ्लोरा, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, आपको फूड चेन याद होगा, ग्रेजिंग फूड चेन। फौना, कंज्यूमर्स होते हैं जो कि फीड करते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे। और फंगा जो है वो डिकम्पोजर होता है,
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR. सो यूनेस्को जो है, it has added 11 new biosphere reserve from countries like Colombia under the MAP program, the Man and Biosphere program. So total कितने sites हो गए हैं? 759 sites in 136 countries. So what is the MAP program? It was launched in 1971 as an intergovernmental scientific program. इसका एम क्या है? टू एस्टैब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट. तो मैप मतलब क्या है? मैन और उसका रिलेशनशिप विद इट्स बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर याद होगा आपको, क्लास में हमने डिस्कस किया था. एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के जंक्शन पे जो है हमारा बायोस्फीयर हमें देखने को मिलता है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर फ्रॉम इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मैप. एंड out of 18 biosphere reserve in India, 12 are recognized under it. Okay, so India में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18. उसमें से 12 जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज्ड है. आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ वी हैव कोल्ड डेजर्ट, देन वी हैव द नंदा देवी इन उत्तराखंड, उसके बाद कंचनजोंगा इन सिक्किम, उसके बाद कच्छ गुजरात में, फिर मानस असम में. मानस ट्रांस बाउंड्री है, और इज इट टोटली लोकेटेड इन इंडिया? मानस जो है, इज इट ट्रांस बाउंड्री और टोटली लोकेटेड? इट इज ट्रांस बाउंड्री. एंड वेयर इट इज लोकेटेड? हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन भूटान, जिसमें रॉयल मानस हो जाता है, बिकॉज भूटान इज ए मोनार्की, इसलिए नाम क्या हो जाता है? रॉयल मानस हो जाता है. और इंडिया साइड जो है नॉर्मल मानस नेशनल पार्क. उसके बाद दिब्रू सैखोवा इन आसाम, देहांग दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश, नोक्रेक. नोक्रेक इज अ PYQ. ये क्वेश्चन आया था, उसमें क्या बोला था कि नोक्रेक सिक्किम, 2022 का क्वेश्चन था ये. नोक्रेक को सिक्किम के साथ मैच किया था, मेघालय होता है वो. ओके. देन सुंदरबंस, ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में. उसके बाद सिंपली पाल उड़ीसा में, शेष चलम जो है आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा. देन यू हैव ग्रेट निकोबार इन द निकोबार आइलैंड. आफ्टर दैट यू हैव द गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, अगस्त्य मलाई इन केरला, नीलगिरी इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ट्राई जंक्शन. तो तीनों जो है ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के ट्राई जंक्शन पे आपको ये नीलगिरीज मिल जाएगा. 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे है, सदर्न कर्नाटका, वेस्टर्न तमिलनाडु एंड ईस्टर्न केरला. देन अचनाकमार अमरकंटक जो आपका छत्तीसगढ़ में है, पचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश, एंड फाइनली पन्ना मध्य प्रदेश में आपका ये है. ओके. सो गल्फ ऑफ मन्नार इज ऑल्सो ए रामसर साइट, एज सो इज सुंदरबन. ओके. अब हम बात करते हैं इको सेंसिटिव एरिया के बारे में. यस. सो हाँ, तो छत्तीसगढ़ से कॉन्टिगुअस है ना. अचनाकमर अमरकंटक वाला जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ से कंटिगुअस है. मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी आपको मिल जाएगा. इको सेंसिटिव एरिया जो है उसके बारे में हम बात करते हैं. सो कर्नाटका गवर्नमेंट, इट हैज रिजेक्टेड द कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स. सो कस्तूरी रंगन कमिटी, और क्या कमिटी है? 2 कमिटी थी वेस्टर्न घाट्स के लिए. एक थी गडगिल कमिटी और एक थी आपकी कस्तूरी रंगन कमेटी. ओके. सो ये क्या था? बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल नेचर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. सो कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा था? इट प्रपोजेस दैट 37% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स उसको इको सेंसिटिव एरिया में हम डिटरमाइन करें. एंड आउट ऑफ द टोटल एरिया प्रपोज्ड, मैक्सिमम कहां पर है? कर्नाटका में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. वेस्टर्न घाट स्टेट्स कौन कौन से हैं? एनी आइडिया? स्टार्ट कहां से होता है? नॉर्थ में. वेस्टर्न घाट स्टेट स्टार्ट कहां से होता है? गुजरात से होता है, नॉट महाराष्ट्र. गुजरात से होता है. ओके. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटका, एंड यू हैव केरला, है ना, एंड सम. यस, करेक्ट. तो इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज जोन्स with identified environmental resources having incomparable value, requiring special attention because of its landscape, wildlife, biodiversity. ये कहाँ लिखा हुआ है? नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी में लिखा हुआ है. So what will be the problem? Why the government of Karnataka has rejected this?
कंजर्वेशन तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम ये है कि इज इट नॉट ए ग्रोथ रिटार्डेंट? ये ग्रोथ को रिटार्ड नहीं करेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो बिजनेसेस है, माइनिंग है, उसको जो है रिटार्ड करेगा, उसको कम करेगा। सो ये नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, इट वाज नोटिफाइड, ये जो आपका ईएसए जो है, इको सेंसिटिव एरिया जोन, इट वाज नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को एंड अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। It creates a kind of barrier shock absorber for the specialized ecosystem. It acts as a transition zone from areas of higher protection to areas having or involving lesser protection. जो एक्टिविटी होता है ईएसजेड में, दे आर रेगुलेटेड बट इट इज नॉट प्रोहिबिटरी। मतलब प्रोहिबिटेड नहीं होता है, रेगुलेटेड होता है। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, इट फेल्ट दैट कि मेरा कमर्शियल माइनिंग जो कि प्रोहिबिटेड होता है, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री कॉजिंग पोल्यूशन विच इज प्रोहिबिटेड, सो इट कैन लोअर द वैल्यू ऑफ कर्नाटकाज इंडस्ट्री। देन इसमें रेगुलेटेड क्या होता है ईएसजेड में? felling of tree, establishment of hotels and resorts, they are very, very regulated. What is permitted? Ongoing agriculture and horticulture practices by local community, dairy farming. तो तीन टाइप के जो है, there are three categories of work that you can do. One is prohibited, that is commercial mining and industries causing pollution, regulated and permitted. तो आप देख सकते हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गुजरात वाले एरिया से स्टार्ट हो रहा है, एंड इंटायर जो है इस पूरे एरिया में आपको मिलेगा। विच आर द पासेस इन वेस्टर्न घाट्स? पाल घाट गैप, थाल घाट एंड भोर घाट गैप। एलिवेशन, सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और हाईएस्ट पीक कहाँ मिलेगा? अनामुडी में। अनामुडी इज लोकेटेड वेयर? अनामुडी किधर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन, yes, it is located in the southern part. Okay. अनामुडी आपको याद होगा, अनामुडी है ना, डोडा बेटा, ये सारा आपको याद होगा। Okay, so forests, there are four major types: evergreen, semi-evergreen and moist deciduous and dry deciduous. ये आपको यहाँ मिलेगा। These are rich in iron, manganese and bauxite. रीजनल नेम क्या है दोस्त इसका? सह्याद्री इन महाराष्ट्र, नीलगिरी इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अनाई मलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन Kerala and Tamil Nadu. So this is one of the world's 8 hottest hotspot. Hotspot तो है ही ये, but this is what? This is hottest hotspot. Okay, of biological diversity. It covers 6% of the land area of India with more than 30% of all plant, fish, herpetofauna, bird and mammal species which are found in these area. Now, what is herpetofauna? Any idea? यहाँ लिखा हुआ है ना herpetofauna, इसके पीछे का ये क्या है? व्हाट इज द होल थिंग? सो बेसिकली ये जो है कलेक्टिव टर्म्स है जिसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियन जो एक पर्टिकुलर रीजन या हैबिटेट को, यस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का एक कलेक्टिव टर्म है। ओके, herpetofauna। और इट इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2012। और इसका एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है? नीलगिरी तार और लायन टेल्ड व्हाट, आई थिंक दे हैव मिस्ड दिस, लायन टेल्ड मकैक। लायन टेल्ड व्हाट? लायन टेल्ड मकैक। ओके, तो मकैक जो है ना, वो यहां पर इन्होंने मिस कर दिया है, कोई नहीं। सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग वेस्टर्न घाट्स? सो वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो है, या माधव गडगिल कमेटी जिसको कहेंगे, वो आया था, विच रिकमेंडेड डेजिग्नेटेड द इंटायर रीजन as an ecologically sensitive area, but this was not very well received by the states, and it was Madhav Gadgil committee, it divided zones into highly sensitive, very high sensitivity zone, ESZ2 high sensitivity zone and ESZ3 moderate sensitivity zone. उसके बाद जो है हाई लेवल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय कस्तूरी रंगन, तो जिसको कस्तूरी रंगन कमेटी हम बोलते हैं, which recommended color coding of industries extending entry 20 of the concurrent list to regulate development within the ecological framework, वो आया था। उसके बाद जो है
ब्रह्मगिरी हिल्स का केस आया था, तो ब्रह्मगिरी हिल्स से कुछ निकलता है क्या, कोई रिवर ऐसी आपको जिसका बारे में आइडिया हो? एनी रिवर विच गोज फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स? इट इज द कावेरी रिवर। ओके, कावेरी रिवर है। उसके बाद ब्रह्मगिरी हिल्स केस आया था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इट आस्क्ड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइनलाइज ए डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट्स एज एन इको सेंसिटिव जोन। अदर रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं तो आईपीबीईएस, व्हाट इज आईपीबीईएस? इट वाज रिसेंटली awarded the Blue Planet Prize, which is given by the Asahi Glass Foundation of Japan. So IPBES, the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, it was established in Panama City as an independent intergovernmental body to strengthen science policy interface for biodiversity and ecosystem services. Now, what is ecosystem services? These are services which the nature gives us without taking any money in return. It is estimated at $100 trillion. The cost of ecosystem services every year is $100 trillion. जो चीज हमें इकोसिस्टम फ्री में देती है, वो हम अगर पैसे से खरीदने जाएं तो हर साल हमें कितना पैसा की जरूरत पड़ेगी? अप्रोक्सीमेटली $100 ट्रिलियन जो है, उतना हमें यूज देना पड़ेगा, तब जाके जो है हम जो नेचर हमें फ्री में दे देती है विदाउट एनीथिंग। यस, वाटर, लॉगिंग है ना, वुड्स, ये सारी चीजें, फूड। ऑलराइट, तो ये जो है ना इसको, यस, तो बोला गया है $100 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा है। रिसेंट जो एस्टिमेशन आया है वो कह रहा है 187-200 ट्रिलियन डॉलर जो है, उतना जो है पैसे की जरूरत होती है, तब जाके जो है आप इकोसिस्टम का सर्विस जो है आप खरीद सकते हो। जिसमें तो सबसे बड़ा खर्चा किसका आता है? सबसे बड़ा खर्चा आता है एयर प्यूरिफाई करने का, वाटर प्यूरिफाई करने का। ओके, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? बॉन में है, जर्मनी में। इट इज नॉट ए यूएन बॉडी, सो प्लीज रिमेंबर दिस। जो आपका आईपीबीईएस है, इट इज नॉट ए यूएन बॉडी। हाउएवर यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो सेक्रेटेरिएट देता है इसको। Currently, it has more than 145 member states, including India. So, India, all state members of United Nations are eligible for the membership. Then, integrated development of wildlife habitats, IDWH. So, recently, Union Cabinet it has approved the continuation of centrally sponsored scheme of IDWH. So, what is centrally sponsored scheme? इसका मतलब जो है bulk money is being provided by central government while the rest of the money is provided by the state government। और दूसरा क्या होता है? वन इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा क्या होगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में द सेंट्रल गवर्नमेंट इट बेयर्स द ब्रंट, और इट नॉट ब्रंट, इट बेयर्स द इंटायरिटी ऑफ द फंडिंग कॉस्ट। ओके, 100% होता है। यहां पर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा जो है स्टेट देती है, लेकिन मेजोरिटी जो है इट इज बोर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आईडीडब्ल्यूएच, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। इसका कंपोनेंट क्या है? सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, recovery program for saving critically endangered species. So far, 22 species have been identified under the species recovery program. अभी रिसेंटली हमने कोई पढ़ा था क्या? जस्ट ऊपर हमें हमने कोई स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इट इज पुट इन द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। तो सब स्कीम्स क्या क्या है आईडीडब्ल्यूएच के अंदर? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में लॉन्च किया गया था। सो तीन जो है, डॉल्फिन, लायन और एलिफेंट। उसके पहले प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका था, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया, उसके बाद जो है हमारा डॉल्फिन, लायन और एलिफेंट आया। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो ये कहाँ पर आया था? ये जो है हाजकारा पंचायत इन केरला। ओके, हाजाखारा पंचायत जो है उसने इसको लॉन्च किया है। और ये पीबीआर जो है उसका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है किसके अंदर? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। सो याद है हमने बात की थी एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी
जो आपका बोर्ड है उसके नीचे फिर जो आता है आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, 3 लेयर्स था। यस, 3 लेयर्स था। टू प्रिपेयर पीबीआर इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या जो लोकल लेवल है उस पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, दे विल पीपल प्रिपेयर द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहता है? अवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देयर मेडिसिनल और एनी अदर यूज, एनी अदर ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये याद है आपको, हमने बात की थी नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, याद होगा आपको। यू मस्ट हैव रिमेंबर अबाउट द नागोया प्रोटोकॉल। तो उसमें जो है जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका हम किस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, so now recently it has been amended, Biodiversity Act. So has it strengthened the protection of traditional knowledge, or is that it, does it has it got weakened? It has got weakened, but for which purpose? For domestic purpose, international authorities को अभी भी same, जो international companies हैं, they have to take the same permission as before. It has been regulated, or it has been, the regulations have been weakened for द आयुष कंपनीज। जो आयुष कंपनीज क्या है? आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ओके, होम्योपैथी, ओके, यस। Environmental Performance Index 2024, it has been published by Yale Center for Environmental Law and Policy. It uses 58 performance indicators across 11 issue categories, और ये 180 कंट्रीज को रैंक करता है। विच इज द टॉप कंट्री? एस्टोनिया। और इंडिया जो है उसको 176 रैंक पे डाला गया है और environmental performance index में। So India has surpassed China as the world's largest emitter of anthropogenic SO2. This is very important. This can come as a question. So please remember this. India जो है उसने चाइना को as the world's largest emitter of anthropogenic SO2 जो है टेक ओवर कर लिया है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द गोल्डमैन सोनरफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो किसी यूनाइटेड नेशंस वालों ने नहीं किया है। एनसीआई में से इंडिया इसमें भी 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज है। इट इवेलुएट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स यूजिंग 4 मार्कर्स: लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस, एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। तो इन सबको मिला के इंडिया को क्या कहा है कि आप जो है 176 रैंक पे हैं। Camels. So United Nations had declared 2024 as International Year of Camelids. Now, what are camelids? These are members of camel family to build awareness of untapped potential of camelids. Camels are found in Africa and Asia. ड्रोमेडेरी और अरेबियन कैमल, उनका सिंगल हम्प होता है, और बैक्ट्रियन कैमल का क्या होता है? डबल हम्प होता है। तो बैक्ट्रियन कैमल कहीं मिलता है क्या इंडिया में? बैक्ट्रियन कैमल दे आर फाउंड इन लद्दाख नुब्रा वैली। ओके, लद्दाख के नुब्रा वैली में मिलता है। ओके, तो ये कैमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। हराई कैमल, दिस इज अ PYQ। दे कैन स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये किस हराई कैमल आर दे डोमेस्टिकेटेड? हराई कैमल, आर दे डोमेस्टिकेटेड? यस, द आंसर इज यस। ओके, राइट। उसके बाद जो है ड्रोमेडेरियन कैमल्स, दे आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट। राजस्थान और गुजरात जो है वहां पर आपको मिलता है। ओके, यस। तो ये खराई कैमल से कौन से कम्युनिटीज रिलेटेड है? फकीरानी और रबारी। ऑलराइट। एंड वेयर इज मालधारी? हमने मालधारी के बारे में भी पढ़ाई कर रखी है। मालधारी ट्राइब कहाँ पर है? वो लायंस के साथ है, गिर लायंस जो है उनके साथ है। अदर टाइप्स ऑफ कैमलिड्स कौन कौन आ जाता है? ललामा, अल्पाका, और बुआनको और विकुना। सो ये जो है आपका, हैव कंप्लीटेड द बायोडाइवर्सिटी पोर्शन। बायोडाइवर्सिटी अपडेट्स जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट अस जस्ट सी दिस। सो वी हैव कंप्लीटेड वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। अब जो है फॉरेस्ट हमारा नेक्स्ट है। लेट अस डू फॉरेस्ट क्विकली, उसके बाद नेक्स्ट उसमें कर लेंगे हम लोग।
ऑलराइट, सो यूएन रेड इनिशिएटिव, यूएन रेड मैंने क्लास में भी करा रखा है हैंडआउट के थ्रू, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं. सो इट इज यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. तो यूएन रेड अभी चल रहा है क्या? अभी क्या चल रहा है? हम लोग रेड प्लस पे आ चुके हैं ना. हम क्या पढ़ रहे थे? रेड प्लस, जिसके अंदर में यूएन रेड आ रहा है. सो उसने रिपोर्ट डाला है, रेजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टुवर्ड्स इनहांस्ड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर फॉरेस्ट. तो एनडीसी जो है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका कंसेप्ट कहां से इवॉल्व हुआ है? आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, पेरिस अग्रीमेंट. कहां से हुआ है? ये आपका हुआ है पेरिस अग्रीमेंट से. सो ओनली 8 of the top 20 countries with highest rate of tropical deforestation have quantified their targets on forest. मतलब उनके एनडीसी में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में बात है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट. कौन सी? सिर्फ ओनली 8 out of 20 countries आर टॉकिंग. 11 of the NDCs they contain targets relating to afforestation and reforestation. अबाउट यूएन रेड के बारे में बात करते हैं. सो इंडिया इसका पार्ट है. यूएन नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम है ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट with focus on advancing the Paris Agreement. It is the largest international provider of RED Plus assistance, and it was launched in 2008 and builds on technical expertise of Food and Agricultural Organization to FAO, UNDP, that is the United Nations Development Program, or यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम. ओके. रेड प्लस क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? वॉर्सो फ्रेमवर्क फॉर रेड प्लस. इट वाज अडॉप्टेड एट द 19th सीओपी ऑफ द यूएनएफ ट्रिपल सी. और रेड प्लस जो है, इट गोज बियॉन्ड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, एंड इट इंक्लूड्स रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहांसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स. अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में. सो 19th सेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएनएफएफ. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट, इट्स अ पीवाईक्यू अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट. ये 19th सेशन इसका हुआ था. सो इसमें क्या क्या हमें चीजें पता चली? वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स by 2020. The members they reaffirmed their UN strategic plan for forests. India tables its significant increase in forest cover. So India का जो forest cover है वो significantly increase हुआ है. Total forest and tree cover it has increased by 2,261 square kilometer, which is a very huge achievement. Why? Can you tell me why this is a huge achievement? Because we are on a path of growth and industrialization. उसके होने के बावजूद, ग्रो करने के बावजूद जो है, हमने अपना फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा दिया. ओके, ठीक है. सो व्हाट आर द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स जो 2017 से 30 तक के बीच में हमें फुलफिल करने हैं? सो GFG 1 इज रिवर्स द फॉरेस्ट कवर लॉस, improve forest benefit and livelihood, protect forest and use sustainable forest products, mobilize the resources for protection of forest, promote inclusive forest governance, cooperate and work across the sectors. United Nations Strategic Plan of Forest, this is under the United Nations UNFF. So ये जो United Nations का आपका फॉरेस्ट है, yes, so basically United Nations का जो फोरम है ऑन फॉरेस्ट, उसके अंदर अंदर में यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है. एंड दिस इज अ स्पेशल सेशन जो कि आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट था 2017 में. उसके स्पेशल सेशन में यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट जो है 2017 में, इसको एस्टैब्लिश करके हमने ये कहा था कि 2030 तक, 2030 तक वी विल अचीव सर्टेन गोल्स. तो अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा गया था? आर वी ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक टू अचीव दीज गोल्स? वी आर ऑफ ट्रैक. Okay. All members of UN are members of UNFF. So India is also a member of the United Nations Forum on Forest. It contains 6 global forest goals, this UN strategic plan for forest, and 26 associated targets जिनको 2030 तक जो है हमें अचीव करना है. And these targets are voluntary and universal. UPSC can say it is binding. No, it is voluntary and
universal, and it includes a target to increase forest area by 3% worldwide, and it builds on the vision of 2030 agenda. Okay. Then you have International Arrangement on Forest. It was established in 2000 as a successor to the Intergovernmental Panel on Forest and the Intergovernmental Forum on Forest. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। इसका कंपोनेंट क्या क्या है? उसी में आता है आपका जो IAF है, दैट इज द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, उसी में UNFF जो है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000। और इसी UNFF में हम क्या देख रहे हैं कि 2017 में फॉरेस्ट गोल्स, ओके, दीज 6 फॉरेस्ट गोल्स जो है हमें देखने को मिला था। उसके साथ साथ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, विच इज अ वॉलंटरी इंटर एजेंसी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट। इसमें 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग IUCN, साइट्स एंड FAO है। ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क, UN ट्रस्ट फंड, एंड देन यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का सेक्रेटेरिएट जो है, ये आपका कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट उसका सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है। ओके, मैंग्रोव कंजर्वेशन, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड मैंग्रोव्स। इंडिया में मैंग्रोव सिर्फ सुंदरबन और उड़ीसा वाले एरिया में मिलता है, ट्रू और फॉल्स? It is false. It is found across the coastal states from Gujarat, okay, to the Sundarbans, from Andaman to the Gulf of Mannar. Pichwaram याद होगा आपको, भीतरकनिका का, Sundarbans. Mangroves are a food. Mangrove trees, they are a food for a certain species. Mangrove trees जो है, especially in the Kutch area, किसके लिए किसके लिए एक फूड का सोर्स। खराई कैमल खाता है, खराई कैमल खाता है, तो वो क्या करता है? स्विम करता है, और वो क्या करता है? चला जाता है सर्टेन आइलैंड्स पे, और वहां जाके वो फिर मंच करता है स्मॉल स्मॉल मैंग्रोव ट्रीज पे। सो IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, इसने क्या कहा है कि 50% ऑफ द इकोसिस्टम उसको एग्जामिन करके उनको हमने वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है उस इकोसिस्टम में हमने रखा है। IUCN Red List of Mangrove Ecosystem, it assesses 36 regions across 44 countries, and it is one of the headline indicator for the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework under the United Nations Convention on Biological Diversity. So Kunming Montreal Framework, it is replacing which framework? Aichi Biodiversity Targets. Were we successful in fulfilling the Aichi Biodiversity Targets? No, we were not successful. That's why we replaced it with the Kunming Montreal Framework. Okay, so mangroves ecosystem of South India, Sri Lanka, Maldives and Northwest Atlantic, they were recognized as critically endangered. तो ये चीज याद रखिएगा, साउथ इंडिया के जो मैंग्रोव्स हैं उनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं, और अंडमान बे ऑफ बंगाल के जो मैंग्रोव्स हैं दे आर लीस्ट कंसर्न, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ इंडिया के क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वेराज वेस्टर्न इंडिया के जो आपके कच्छ एरिया है और आपका जो गोवा वाला एरिया है उसके हम क्या कह रहे हैं? वल्नरेबल है। द मैंग्रोव्स आर लोकेटेड प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट कोस्ट। ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। Now, what is the status of mangrove in India? So, mangroves in Lakshadweep, archipelago, and the coast of Tamil Nadu are critically endangered. और ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट आई है उसके अंडर है। और मैंग्रोव कवर इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 17 स्क्वायर किलोमीटर। सो मार्जिनल इंक्रीज हमें देखने को मिला है 0.34% का, कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट। मेजर लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? अंडमान में है, सुंदरबंस में है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टास आपको वहां मिलेगा। लेकिन द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया इट इज इनंडेटेड विद द मैंग्रोव्स। मिष्टी, मिष्टी क्या होता है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। सो ये जो है बाबू उसका फेवरेट है एक्रोनिम, ओके, इस टाइप का जो है। एंड यू नो इट इट रिमाइंड्स यू ऑफ मिष्टी दही। ओके, आई माइट हैव इट टुडे। इसको देख के मुझे मिष्टी दही की याद आ गई। सो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड tangible income under the Ministry of Environment and Forest.
सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम साइम इनिशिएटिव। सो ये क्या कर रहा है? बिल्डिंग एक्वाकल्चर फार्म। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जरूरत क्या पड़ी। ये मैंने क्लास में बताया था कि साउथ इंडिया जो है उसमें जो पिचवरम वाला है मैंग्रोव, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द श्रिम्प फार्मिंग। वहां पर जो है, जो तमिलनाडु का जो आपका मैंग्रोव्स है, वो श्रिम्प फार्मिंग की वजह से जो है वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी के लिए हम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रमोट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन, ये WWF इंडिया एज enjoined citizens इन 9 कोस्टल स्टेट्स ऑन मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो WWF इंडिया जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है, वो इंडियन सिटीजन्स के साथ जो सिविल सोसाइटी है, NGO, उनके साथ काम करके एक पब्लिक एक्शन प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, ये भी जो है मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए है। ग्लोबल इनिशिएटिव में वी हैड द मैंग्रोव ब्रेक थ्रू वेयर इन द COP27 इन शार्म एल शेख। शार्म एल शेख में और कुछ इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? शार्म एल शेख में और कुछ लॉस एंड डैमेज फंड, और वो ऑपरेशनलाइज कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था शार्म एल शेख में COP27 में, ऑपरेशनलाइज दुबई में हुआ था 1 साल के बाद। और दुबई में कुछ और हुआ था क्या? दुबई में फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो फाइनलाइज हुआ था। अल्टेरा इन्वेस्टमेंट फंड आया था विथ 250 बिलियन टारगेट एंड 30 बिलियन फ्रॉम UAE एज द होस्ट नेशन। Other related news में we have the Forest Advisory Committee, which has exempted surveys involving drilling and felling of up to 100 trees. So एक चीज याद रखिएगा, what is the trend? Is our trend going towards relaxation of norms for industrialization, or is our trend going towards tightening of norms? मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड जो है रिलैक्सेशन की तरफ है। वी आर बिकमिंग प्रो बिजनेस इन द एनवायरमेंटल फील्ड। So what is Forest Advisory Committee? It is a statutory body under the Forest Conservation Act, operates under the Ministry of Environment and Forest. It approves the diversion of forest land for non-forest purpose. It assesses land request validity, evaluates impact minimization plans, and considers potential damage to local ecology. What is the role of FAC? रिकमेंडेटरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी का जो है रोल क्या है? रिकमेंडेटरी है। रिकमेंडेशन अगर मानना होता है तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मानता है, नहीं तो नहीं मानता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव फेरी। सो जो फेरी है, ये Secretariat of the CBD Convention on Biological Diversity, it has marked the 10th anniversary of FERI, that is the Forest Ecosystem Restoration Initiative. और ये कोरिया फॉरेस्ट सर्विस और CBD सेक्रेटेरिएट के पार्टनरशिप में बना था, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द UN CBD सेक्रेटेरिएट. So it is designed to assist the developing countries in operationalizing national targets and plans in line with the Aichi biodiversity target. तो अब तो आईशी है नहीं, अब तो आईशी है नहीं ना। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं? कन्मिंग अब जो है, इट विल सपोर्ट द implementation of the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Okay. All right. So European Union's Nature Restoration Plan, it has been approved, which is first of its kind. ये continent wide program है, और these are they form the European Union Green Deal program. So European Union Green Deal क्या चाहता है? Net zero emission of greenhouse gas in Europe by 2050. Okay. And this contains binding restoration target for long-term recovery of nature in European Union's land and sea area. Okay, and then European Union deforestation regulation ये आया है. So ये जो है basically EUDR का एक्सटेंशन कर दिया गया है। पहले इसको लॉन्च किया गया था, और ये बेसिकली फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए आता है। एंड दिस विल बेसिकली apply to a wide range of product including palm oil, soy, beef, cocoa and timber. और ये क्या करता है? ये basically set of goods which is imported from outside, और ये क्या करेगा? उसको regulate करेगा, because these particular goods, they are not contributing
टू द यूरोपियन यूनियंस क्लाइमेट एंड लैंडस्केप। सो ये क्या करेगा? ओके, ये क्या करेगा? बेसिकली पाम ऑयल, सोय, बीफ, कोकोआ एंड टिम्बर, इन सबको रेगुलेट करता है। और ये रिक्वायर करता है कंपनी को टू वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड दिस विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर कंट्रीज हु एक्सपोर्ट टू द ईयू। तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द forest portion as well. Next, we will complete wetlands, organization and news, and climate change. And finally, in the third portion, we will be able to complete the pollution part. So we will try कि जो है इसको खत्म कर दें. Yes, this is different from the Green New Deal. एक क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट है गडगिल कस्तूरी रंगन कमेटी का, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ बिजनेस of but it's for environment, then why is government ignoring? So उसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे गडगिल कमेटी जो था, उसके बाद काफी ज्यादा अप्रोर आया था दैट इट विल किल द बिजनेसेस, इट विल किल द डेवलपमेंट। सो उसके बाद जो है उन्होंने एक नया कमेटी लॉन्च किया। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्लैंकेट अगर हम इको सेंसिटिव जोन बना देते हैं तो क्या इंडिया का एक बहुत लार्ज चंक ऑफ लैंड आउट ऑफ बाउंड्स नहीं हो जाएगा डेवलपमेंट के? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अंडरस्टूड दिस फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि यहाँ पर जो है हम पूरे एरिया जो है उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, पूरे एरिया को डिक्लेयर नहीं कर सकते एज इको सेंसिटिव जोन्स। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि आप जो है सर्टेन एरियाज जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए विच आर वेरी वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव, उसको डेवलप कर, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी एरियाज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके,